دیش کے عیسائی بھائیوں نے غالباً یہ سوال کیا ہوا. تو اس میں مطلب ایسی روایتیں تو ہے. حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایتیں نبیوں کے سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جنت نشان ہے. جس کو رمضان کے وقت موت آئی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس کی موت یوم عرفہ یعنی 9 ذوالحجہ کے وقت آئی وہ بھی جنت میں داخل ہوگا، اور جس کی موت صدقہ دینے کی حالت میں آئی وہ بھی داخل ہے جنت ہوگا. حوالہ حلیت الاولیاء جلد 5 پیج نمبر 26 حدیث نمبر 6187. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ماہ رمضان میں مردوں سے عذاب قبر اٹھا لیا جاتا ہے. حوالہ شرح الصدور پیج نمبر 187. تو یہ جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا یہ مکتبۃ المدینہ کی کتاب فیضان رمضان کے صفحہ نمبر 55 یعنی 55 سے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ماشاءاللہ سے سب سے پہلے امیر اہل سنت کو مدنی چینل کے 16 سال پورے ہونے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. مدنی چینل کی ساری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. میرا امیر اہل سنت سے ایک سوال ہے کہ کیا مدنی چینل کا نام آپ نے رکھا تھا یا کسی اور نے؟ یہ نام کا تو میرے منہ سے نکلا تھا. باتیں کہ اصل میرا مطلب ٹی وی کی طرف رجحان کچھ سمجھ ہی نہیں پڑتی تھی ٹی وی میں، اور آن کرنا بھی مجھے نہیں آتا تھا، ٹی وی آن آف کرنا بھی نہیں آتا تھا. ہمارے گھر میں کبھی گھسا ہی نہیں تھا، اور میں کہتا بھی تھا کہ انشاءاللہ میرے جیتے جی تو میں نہیں گھسنے دوں گا ٹی وی کو، کیونکہ سارے چینل گناہوں بھرے ہی ہوتے تھے. اب بھی حالت یہی ہے، یہ ایک اس میں ابھر کر آ گیا. اللہ نے یہ سعادت دعوت اسلامی کو دی اور یہ ہمیں نصیب ہو گیا. تو کوئی سوچ کا پڑتا نہیں تھا. میں سمجھا کہ اس میں یوں بھی کرنا ہوتا ہوگا، یوں بھی کرنا ہوتا ہوگا، اور سب سے بیانات کروانے ہوتے ہوں گے. تو یار ہم کو جمیں گے نہیں سارے، ہم خود بیان کریں یہ ہماری چلے گی نہیں. اس میں اس طرح کا کچھ میرا سنا ہوگا یا کچھ ذہن میں بیٹھا تھا. تو حاجی عمران نے مجھے بتایا کہ شورا کے نگران نے ایسا نہیں ہے، ہم جس کو چاہیں وہی مطلب بولے گا، بیان کرے. بولا ہے، میں نے کہا ہے تو بولا. تو یوں پھر ذہن بنا اور ہم نے مدنی چینل کی ترکیب بنائی. تو نام کیا رکھیں؟ تو میرے منہ سے شاید نکلا تھا مدنی چینل، کہ اپنے ہر چیز میں مدنی مدنی کرتے ہی ہیں. تو یوں مدنی چینل نام ہو گیا اس کا، الحمدللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. آپ کو مدنی چینل کی 16ویں سالگرہ بہت بہت مبارک ہو. میرا چھوٹا بھائی جس کی عمر 7 سال ہے، ماشاءاللہ مدنی چینل کی برکت سے کافی دینی معلومات اس طرح کی حاصل ہے کہ جو بڑوں کو بھی نہیں پتا. ایک مرتبہ احکام تجارت پروگرام دیکھ رہا تھا مفتی علی اصغر صاحب کا. دیکھنے کے بعد اپنی والدہ سے کہا کہ ماما جب میں پیسے جمع کر رہا ہوں تو کیا جمع کروں گا تو مجھ پر بھی زکوٰۃ فرض ہوگی؟ تو ماشاءاللہ اس طرح وہ چھوٹے چھوٹے سوالات کرتا ہے. تو بس یہ مدنی چینل کی برکت ہے. آپ دعا فرما دیجیے کہ اللہ پاک اسے بعمل عالم دین مخلص دین کا مبلغ بنائے. آمین آمین. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میرا نام محمد احمد ہے، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرے پیارے پیارے پاپا جان، آپ کو میری طرف سے مدنی چینل کی 16ویں سالگرہ بہت بہت مبارک ہو. پیارے پاپا جان، آپ نے کل پان اور گٹکا نہ کھانے والوں کے لیے دعا ارشاد فرمائی ہے. تو کیا جو لوگ پان اور گٹکا نہیں کھاتے اور کبھی نہ کھانے کی نیت کرتے ہو تو کیا وہ آپ کی دعاؤں میں شامل ہوں گے؟ جو آپ ارشاد فرما دیجیے. آپ مجھے میرے گھر والوں دعاؤں سے نواز دیجیے. مدنی چینل زندہ باد. جزاک اللہ خیر. ویاکم. ماشاءاللہ. اب وہ دعا کر دو، یہ اس پر میری توجہ نہیں تھی. اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. યારા અમીર અહેલે સુન્નતથી સવાલ અર્જ છે કે જેવી રીતે મસ્જિદમાં ઇતિકાફ કરવા વાળાઓને નિયત કરવી પડે છે, એવી જ રીતે જે લોકો ઇફતારીના ટાઈમે મસ્જિદમાં રોજો ખોલવા માટે આવે છે તે લોકો ખારીજે મસ્જિદની બહાર ખાવા પીવાનો ઇંતજામ હોય છે, તો ત્યાં તે લોકોને ઇતિકાફની નિયત કરવી જરૂરી છે.
જવાબ ઇનાયત ફરમાવી દેજો. માશાઅલ્લાહ. अब મસ્જિદની અંદર તો એતિકાફની નિયત હોવી જોઈએ ઇફતાર કરવા માટે, નહીતર મતલબ ઇજાજત નથી. अच्छा જે જગહ ખારિજ મસ્જિદ મસ્જિદ થી બહાર, આઉટ ઓફ મસ્જિદ, તો એતિકાફની નિયત તો થાય મસ્જિદના અંદર. તો બહાર તો નિયત કરે તો બી કોઈ લાભ નથી, ના બહાર જરૂરત બી નથી એતિકાફની નિયતની, ને ખારિજ મસ્જિદમાં કોઈ જરૂરત નથી, વગર નિયતે ખાય પીએ તો વાંધો નથી. સલ્લુ અલલ હબીબ सल्लल्लाहु अला मुहम्मद. यानी मतलब ये पूछ रहे हैं कि खारिज मस्जिद में भी क्या एहतिकाफ की नियत करनी होगी इफ्तार करने वालों को? तो मैंने कहा कि खारिज मस्जिद तो है मस्जिद से बाहर, क्यों मस्जिद में एहतिकाफ की नियत है, मस्जिद के लिए एहतिकाफ की नियत, तो बाहर खाने पीने में कोई मसला ही नहीं है एहतिकाफ की नियत का. सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद. रमज़ान शरीफ रहमतों और बरकतों का महीना है, मगर अफसोस कि गिरां फरोश यानी अशिया को महंगा करने वाले इस मुबारक महीने में हर चीज़ की कीमत में दुगना तिगना इजाफा कर देते हैं. आटा, दाल, चावल, घी, खजूर समेत दीगर अशियाए खुर्दोनोश की कीमतों में बढ़ता हुआ इजाफा मुतवसत आमदनी वाले तबके को शदीद मुतासिर कर रहा है. जैसे कि रमज़ान में बहुत महंगाई हो जाती है और दुकानदारों को चाहिए क्या नाम है रमज़ान शरीफ में जो चीज़ें होती है वो सस्ते से सस्ते चीज़ें दें ताकि जो गरीब लोग हैं उनके लिए मसला नहीं हो. रमज़ान शरीफ में लोग बिजनेसमैन और शॉपकीपर्स वैसे भी हर चीज़ को बढ़ा देते हैं, तो गरीबों का ख्याल रखना चाहिए इसमें और आवाम को रिलीफ देना चाहिए रमज़ान शरीफ में. महंगाई की चक्की में पिसी आवाम गिरां फरोशों के रहमो करम पर है. अमीर अहले सुन्नत में आपसे ये जानना चाहूँगा कि किस तरह रमज़ान शरीफ में चीज़ों को महंगा करके फ़रोख्त करने की रविश की हौसला शिकनी की जा सकती है. देखने में ये भी आया है कि रमज़ान शरीफ में जो चीज़ महंगी हो जाए लोगों की कोशिश होती है कि उसे जल्द से जल्द ख़रीद लिया जाए कि कहीं वो मज़ीद महंगी ना हो जाए, जिससे गिरां फरोशी को भी तक़वियत मिलती है. ऐसे में लोगों को क्या करना चाहिए? अल्लाह अल्लाह, वाकई यानी कि रमज़ान शरीफ में तो रमज़ान में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों को ग़ालिबन बहुत महंगा कर दिया जाता है. तो इसका हल तो एक बुजुर्ग ने ये इरशाद फरमाया है कि जो चीज़ महंगी हो जाए उसको खरीदना छोड़ दो, आप ही सस्ती हो जाएगी. लेकिन यहाँ साहिल ने ये कहा कि यहाँ तो आवाम की भी नेचर ये है कि महंगी चीज़ होगी तो जल्दी खरीदो कि ज़्यादा महंगी हो जाएगी, वरना तो ये खुद ही ज़्यादा महंगाई का सबब खरीदार बन रहे हैं. अब ऐसे में कौन किसको समझाए? तो महंगा बेचने वालों को चाहिए कि वो अल्लाह के बंदों पर रहम करें, इनकी खैर खाई करें, इनकी भलाई, इनके साथ भलाई करें और वाजिबी दाम में इनको दे. और वाजिबी क्या होता है ये आप समझ सकते हैं. यहाँ तो ये बोलते हैं कि मतलब हमको भी तो महंगा आता है. अब अगर 10% महंगा आया फिल बिल फर्ज, तो ये 70%, 80%, 50% क्यों महंगा ये दाम बढ़ा देते हैं. तो इसलिए वो अगर वाकई 10% महंगा आया है तो आप भी 10% बढ़ाएं. तो इस तरह मतलब कोशिश करने से नियत साफ मंजिल आसान. किसी की नियत होगी कि लोगों को तकलीफ ना हो, उस वाजबी दाम से बेचें, तो अल्लाह ताला उसको और तरक्की देगा, बरकतें देगा. एक मरतबा मक्का मुकर्रमा में किशमिश की कीमत बढ़ गई. लोगों ने शेर खुदा अली अल मुर्तदा रज़ी अल्लाह अन्हु से इसकी फरियाद की. तो आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने इरशाद फरमाया, तुम लोग किशमिश के बदले खजूर इस्तेमाल करो तो किशमिश की कीमत जो है वो गिर जाएगी. उसके नेमल बदल अगर है तो वो इस्तेमाल कर लिया जाए. किशमिश एक अच्छी चीज है लेकिन खजूर भी कम अच्छी नहीं है. तो
खजूर इस्तेमाल करो। तो किशमिश जब बिकेगी नहीं तो बेचने वाले खुद ही सस्ता करेंगे इसको। अच्छा, किशमिश में भी सब समझते नहीं है, गले उन किशमिश को सोंगी बोलते हैं पंजाब वाले, है ना, सोंगी। तो ये सोंगी की बात हो रही है। और किशमिश और सोंगी जो भी है, तो ये जो अंगूर होता है, अंगूर जब खुश्क कर लिया जाए ड्राई, तो ये किशमिश होती है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अमीर अहले सुन्नत, सोशल मीडिया पर एक पोस्ट नज़र से गुजरी जिसमें एक दरख्त ज़मीन पर गिरा हुआ है लेकिन उस पर शाखें निकली हुई हैं, जबकि पोस्ट पर यह तहरीर भी थी, मैं बहुत पहले गिर गया था मगर मैंने हार नहीं मानी। आपकी इस पोस्ट से मुतालिक क्या राय है, इरशाद फरमाइए। वाह, यानी कि मायूस नहीं होना चाहिए, शायद ये मुराद हो यहाँ कि कुछ भी हो मायूस नहीं होना चाहिए, जिद्दोजहद जारी रखनी चाहिए, तो कामयाबी आपकी है। इसमें वो तैमूर बादशाह का वाकया है कि वो एक बार पसपा होकर ने हार कर भाग खड़ा हुआ और एक गार में उसने पनाह ली, और उस गार में जब ये खाने के लिए बैठा तो कोई गिजा का दाना चावल वगैरह का वो गिर गया, तो एक कीड़ी आई, कीड़ी ने वो उठाया दाना, चोटी उठाकर गार के दीवार पर चढ़ने लगी, चढ़ी कुछ तो फिर गिर पड़ी, फिर उसने दाना उठाया, फिर चढ़ी कुछ, फिर गिरी, और दाना भी इसके मुंह से गिर जाता है, तो फिर उसको पकड़ती, और ये चढ़ती रहती, यहाँ तक कि गिरने पड़ने चढ़ने का ये अमल इसका जारी रहा। आखिर तक इसको जहाँ जाना था उस गार की छत में कहीं सुराख था, उसमें ये लेकर चावल का दाना दाखिल होने में कामयाब हो गई। तैमूर ये दिलचस्पी से देख रहा था, तो इसको बड़ी इबरत हुई कि एक कमजोर कीड़ी इतनी बार गिरने के बावजूद हिम्मत नहीं आ रही, और आखिरकार इसने मैदान मार लिया, अपनी यानी कामयाबी जो हासिल कर ली। तो मैं मर्द जैसा मर्द होकर मैं यहाँ गार में चिपके बैठा हूँ, क्या करने बैठा हूँ, चलो। तो उसने अपने बच्ची खुची फौज इकट्ठी की, फौजियों को इकट्ठा किया, और सब को लेकर इसने एक जोरदार हमला, जिन्होंने इसका मुल्क इससे छीन लिया था, उन पर कर दिया। वो लड़ाई हुई, और चूंकि जोश बहुत था तैमूर के लश्कर में, इसने वो इस तरह की मतलब इनकी ब्रीफिंग किया था, उसको जहन बनाया था उनका, तो आखिरकार ये कि दुश्मन जो था काबिज, वो मुल्क छोड़ के फरार हो गया, और यूं ये अपने इसने खोई हुई सल्तनत वापस हासिल कर ली। तो इसी तरह ये दरख्त जो गिरा हुआ था, तो उसकी वो शाखें बन गई, फिर उसमें पत्ते लग गए, और कई पौधे इसके जैसे इसमें नजर आ रहे थे ये बन गए। तो ये कि दरख्त गिर गया तो हिम्मत नहीं आ रही, तो बंदा भी चाहे गिर जाए, यानी कि तरक यानी मुश्किल में आकर इसका कारोबार जैसे ठप हो गया या इम्तिहान में फेल हो गया, तो हिम्मत ना हारे। दीनी इम्तिहान में भी तलबा फेल होते हैं, तो हिम्मत ना हारे, बल्कि ये कि फिर कोशिश करें, फिर कोशिश करें, फिर कोशिश करें, तो इंशाअल्लाह कभी ना कभी कामयाबी आपके कदम चूमेगी। एक बुजुर्ग फरमाते हैं, अगर तुझे कोई नागवार बात पेश आए और उससे छुटकारे की कोई सूरत बनती हो, तो तुम हिम्मत ना हारो और यूं उस मुसीबत से खलासी पाओ। और अगर उस मुसीबत से निकलने की कोई राह ही नहीं, तो कम से कम रोना धोना तो मत मचाओ, कि शोरो गुल और वावेला मचाने से क्या हासिल, आई हुई मुसीबत तो टलेगी नहीं, तो सब्र और इस्तिकलाल से हालात का मुकाबला करो। रौजुल अखियार पेज नंबर 189 के हवाले से ये बुजुर्ग का वाकया या इरशाद हमने सुना। तो यूं के हिम्मत ना हारे, हिम्मत हारना ये कहते हैं मर्दों का काम नहीं है, आगे बढ़ता चला जाए।
बढ़ता चला जाए तो इंशाअल्लाह कामयाबी हासिल कर लेगा। बाद बड़े कमज़ोर लोग जो होते हैं कि वो बड़े बड़े कारनामे अंजाम देकर तारीख का हिस्सा बन जाते हैं, बहुत बड़ा काम, इनकी उम्मीद से भी ज़्यादा इनसे काम सर अंजाम पा जाता है। तो इसलिए कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हिम्मत मर्दा दे मदद खुदा, उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मेरा अमीर सुन्नत से ये सवाल है, अगर फजर की नमाज के लिए बंदा सुनते जो होती हैं वो बंदा पहले जमात खड़ी हो तो जमात में शामिल हो सकता है, या सुनते बाद में पढ़े या पहले पढ़ सकते हैं? सुन्नतें अगर पढ़कर फजर की जमात मिल जाती है, कुछ ना कुछ हिस्सा उसका, तब तो सुन्नतें पहले पढ़ ले। और अगर यूं लगता है कि सुन्नतें पढ़ूंगा तो सलाम फिर जाएगा, अब मैं रह जाऊंगा फजर की जमात से, तो अब ये जमात ले ले। और फिर ये सुन्नतें सूरज तुलू होने के बाद, सनराइज होने के बाद 20 या 25 मिनट के बाद पढ़ ले। ज़ाहवा कुबरा तक, जिसको आमतौर पे ज़वाल लोग बोलते हैं, उस वक्त तक इसको पढ़ सकते हैं, इस सुन्नत को। अब ये सुन्नतें जो भी सूरज निकलने के बाद जो टाइम दिया बताया, तो ये पढ़ना मुस्तहब है, पढ़ ले तो अच्छा है। और अब ज़वाल हो गया सूरज, यानी ज़ाहवा कुबरा पर आ गया सूरज, तो अब ये कि वो मुस्तहब भी ना रहा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मदनी चैनल के लिए जो साथ दे अत्तार का, उस पे हो रहमत खुदा की और करम सरकार का। अमीर अहले सुन्नत हमारे दरमियान माशाल्लाह छोटे छोटे बच्चे हैं जो इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल आपके सवालात के जवाब देने के लिए तैयार हैं। तैयार हैं आप? कौन कौन तैयार हैं? सब तैयार हैं? इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह। आपका नाम क्या है? प्यारे अमीर सुन्नत, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अब्दुल्लाह है, मैं 5 साल का हूँ। माशाअल्लाह। जी मेरे से सलावत इरशाद फरमाए। मदनी चैनल स्टार्ट हुए कितने साल हो चुके हैं? 16 साल। माशाअल्लाह। अच्छा ये बताइए, मदनी चैनल किस ईस्वी साल में शुरू हुआ? 2008। वाह, जवाब दुरुस्त, दोनों जवाबात दुरुस्त हैं। प्यारा अमीर अहले सुन्नत, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम यूसुफ रज़ा है, मैं 6 साल का हूँ। माशाअल्लाह। माशाअल्लाह जी। अच्छा आप बताइए, मदनी चैनल कितनी और कौन कौन सी जबानों में ऑन एयर हो रहा है? 3, उर्दू, इंग्लिश, बंगला ज़बान। सुभान अल्लाह, जवाब दुरुस्त है। मैं मदनी चैनल के नाज़रीन को ये भी अर्ज करता चलूँ कि 3 ज़बानों में तो चल रहा है, उर्दू, इंग्लिश और बंगला। अरबी ज़बान में भी मदनी चैनल है, मगर वो सोशल मीडिया पर है। आप सोशल मीडिया पर जाकर, यूट्यूब पे भी जाकर आप मदनी चैनल अरबी लिखेंगे तो इंशाअल्लाह आपको मदनी चैनल अरबी का भी वहाँ पर मिल जाएगा। फेसबुक पे भी आप जाएंगे तो मदनी चैनल अरबी आपको फेसबुक पे भी मिल जाएगा। तो जो अरब दुनिया है उसके लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास कंटेंट मौजूद है। इसकी पूरी वेबसाइट मौजूद है, मदनी चैनल अरबी और अरबी वेबसाइट की, ताकि जो अरब दुनिया से वाबस्ता इस्लामी भाई हैं उन तक भी पैगाम पहुँचाया जा सके। जब प्यारे प्यारे बच्चों ये बताइए कि मदनी चैनल का टॉप रेटेड प्रोग्राम कौन सा है? मदनी मुज़ाकरा। जवाब क्या बोल? मदनी मुज़ाकरा जारी रहेगा। ज़हनी आजमाइश बहुत टॉप जाता है उसे, जब होता है तो मदनी मुज़ाकरे को पीछे रख देता है।
ट्विटर जो फीड किया है वो मदनी मुज़ाकरे का है, लिखा हुआ भी मदनी मुज़ाकरा है। अब वो सारा साल नहीं होता, वो ज़हनी आजमाइश वाला ये है। हुजूर, ये आपकी बात दुरुस्त है कि मदनी चैनल पर ज़हनी आजमाइश बहुत बड़ी तादाद देखती है और माशाल्लाह उसका इंतज़ार भी होता है और उसको पसंद भी किया जाता है, लेकिन एक पूरी तंजीमी तौर पर जो देखने और दिखाने का जो एक निज़ाम है, और हम कह सकते हैं कि फ़िज़िकली भी और डिजिटली भी, अगर देखने की अगर आप परसेंटेज निकालेंगे जो वीकली बेसिस पर भी हम कह सकते हैं, माह रमज़ान में देख लें तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो अल्लाह पाक की रहमत से भी मदनी मुज़ाकरे की जो रेटिंग है वो इंशाअल्लाह ताला आपको ये मिलेगी कि ये है ना, को डाउट नहीं। ज़हनी आजमाइश को भी देखने के लिए काफ़ी बड़ी तादाद होती है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो मदनी मुज़ाकरे की रेटिंग आपको फर्स्ट मिलेगी। एज ए मीडिया पॉइंट ऑफ व्यू पर अर्ज़ कर रहा हूँ। जवाब दुरुस्त है। प्यारे मेरे सुन्नत, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं 6 साल का हूँ। हसनैन। वाह। मदनी चैनल के उस प्रोग्राम का नाम बताइए जिसके ईपीज सबसे ज्यादा हो चुके हैं। मदनी मुज़ाकरा। अब मुझे यही नहीं पता कि जवाब दुरुस्त कहूँ या ना दुरुस्त कहूँ, लिखा हुआ है तो इसलिए मैं कह देता हूँ जवाब दुरुस्त है। ये मदनी चैनल की ईपीस सबसे ज़्यादा है क्योंकि ये प्रोग्राम एक तो कंटिन्यू चल रहा है और मदनी मुज़ाकरा शुरू से ही चल रहा है। आपके सामने इसका 2326वां नंबर है आज, तो ये चल ही रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इतना लॉन्ग और इतनी ज़्यादा किस्तों वाला कोई प्रोग्राम अब तक मदनी चैनल पर कंटिन्यू है नहीं मेरी मालूमात के मुताबिक। माशाअल्लाह। और ज़हनी आजमाइश भी मदनी मुज़ाकरे ही की पैदावार है। ये तो खुद हाजी अब्दुल हबीब ने उस दिन बताया था, मैंने सुना था मदनी चैनल पर कि हम तो खुसूसी मदनी मुज़ाकरे में थे और यूं 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 गुफ्तगू हो रही थी, तो इसमें जहन में आया कि यार हम यूं यूं करें ज़हनी आजमाइश, और यूं मतलब ये वही हमारा जहन बना और ये इस तरह। आप शायद उसमें होंगे प्रोग्राम में। जी, ज़हनी आजमाइश जो है ना, ये इस तरह की कुछ यहाँ से मिली जुली सी चीज़ों से भी ज़हनी आजमाइश अल्हम्दुलिल्लाह तख्लीक में आया और फिर इसकी बाद तदरीज सूरत तब्दील होते 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 आज हमारे सामने है कि ज़हनी आजमाइश इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह एक बेहतरीन मदनी चैनल का प्रोग्राम है जो एक अपने सीज़न पर चलता है और अल्हम्दुलिल्लाह ये आशिकान रसूल को बहुत पसंद है। जवाब दुरुस्त है। ये हो गए बच्चों के, अभी सवाल तो बाकी मजीद हैं इंशाल्लाह। जी जी। क्या मदनी चैनल चैनल के लिए एडवर्टाइजमेंट्स ली जा रही हैं? जी नहीं। जवाब दुरुस्त है। मदनी चैनल पर कितने घंटे बच्चों की ट्रांसमिशन टेलीकास्ट होती है? 5। जवाब दुरुस्त है। उस शहर का नाम बताइए जहां से पूरी दुनिया में मदनी चैनल टेलीकास्ट हो रहा है। कराची। जवाब दुरुस्त है। अस्सलाम प्यारे अमीर अहले सुन्नत, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह। उम्र बताइए अपने। मेरा नाम मोहम्मद ज़ैनुलआबदीन है, मैं 7 साल का हूँ। 7 साल, माशाअल्लाह। सबसे पहले किस जबान में मदनी चैनल शुरू हुआ? उर्दू। माशाअल्लाह। इस सवाल का भी जवाब दे दीजिए कि किड्स मदनी चैनल के कोई 3 प्रोग्राम के नाम बता दीजिए। मदनी चैनल आओ कुरान सीखें, कुरान टाइम। ये 3 नाम तो नहीं लिए इन्होंने शायद। 3 नाम बता, दोबारा बताएं।
कुरान सीखिए। कुरान टाइम एक तो बोला इन्होंने। सब इन्होंने मदनी चैनल ही एक प्रोग्राम का नाम बता दिया है। वो सारे नाम नहीं लिए इन्होंने, 3 नहीं लिए, भूल गए होंगे। बेटा दोबारा लें। अच्छे बच्चे, हाँ। कुरान टाइम, आओ कुरान सीखें। और कुछ याद है? जो नहीं लिखा वो याद है इनको, अच्छा, ऐसा लग रहा है। ये देख, या तो वो प्रोग्राम है तो ये वो देखते होंगे तो याद रह गया होगा। इल्म में नहीं है ये शायद। हमारा इस्लाम हमारे इस्लाम, सुनो समझो सीखो। सुनो सीखो समझो। सुनो समझो सीखो। सुनो समझो सीखो। कुरान टाइम